Hello everyone. In this video, we will try to understand few proverbs. And as you already know that I maintain a notebook that contain a lot of word meanings and proverbs. So this is the revision video, and I will try to revise the proverb that I have written in my notebook. The first proverb says, "I was burning while you came, blaming me for the smell of ashes." I was burning while you came, blaming me for the smell of ashes. Means मैं जल रहा था और उस टाइम भी यू केम कंप्लेनिंग मी कि क्यों स्मेल आ रही है, स्मेल किस चीज की आ रही है, क्यों आ रही है, वाई। सो उस टाइम पे भी द सामने वाला पर्सन was not ready to accept in what situation the other person was, what the other person was going through. And at that time also the another person was still blaming that why you are smelling. ठीक है, so the first person is going through a lot of thing. ठीक है, और उसको रेफरेंस देते हुए कहा गया है कि आई वॉज बर्निंग while you came blaming me for the smell of ashes. ठीक है, and who said this? Fyodor Dostoevsky. फ्योडोर डोस्टोएव्स्की की मैंने द वाइट नाइट्स पढ़ी हुई है, वो भी अच्छी बुक है. He was an he was a Russian author. Next proverb is, he who returns from a journey is never the same as he who left. He who returns from a journey is never the same as he who left. This is a Chinese proverb. What does it mean? कि एक व्यक्ति जब घर से निकलता है एक जर्नी पे, और जब उस जर्नी को कंप्लीट करके जब वो उस घर में वापस अपने घर में वापस आता है, तो वो व्यक्ति नहीं रह जाता जो घर छोड़ के निकला था. अब वो बदल चुका होता है, उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस जरूर आए होंगे. हो सकता है कुछ चेंजेस आए हों, हो सकता है बहुत से चेंजेस आए हों, लेकिन वो सेम पर्सन नहीं रहता, उसमें चेंजेस आना कंफर्म है. So this is a Chinese proverb, and what it says, he who returns from a journey is never the same as he who left. Third proverb is, there is no need to drink the whole sea to realize it's salty. There is no need to drink the whole sea to realize it's salty. This is also a Chinese proverb. चाइना में एक कहावत है, और वो कहावत क्या कहती है कि ये पता करने के लिए कि समुद्र का संपूर्ण पानी, सारा पानी उस समुद्र का खारा है, हमें उस सभी पानी को, हमें उस संपूर्ण पानी को पीने की आवश्यकता नहीं है. ये पता करने के लिए हो कि वो पानी खारा है, हम उसमें से एक चुल्लू पानी भी पी लेंगे तो पता चल जाएगा कि जितना भी पानी यहाँ पे है वो खारा है. हमें वो सब सारा पानी पीने की आवश्यकता नहीं है. सो फॉर दैट इट इज said, there is no need to drink the whole sea to realize it's salty. So you can use these proverbs wherever you want on basis of the situation. Now next one is by the Napoleon Bonaparte. Build an army of 100 dogs. Build an army of 100 dogs. Appoint a lion as their leader, and watch all the dogs fight as lions. Build an army of 100 dogs. Appoint a lion as their leader, and watch all the dogs fight as lions. Napoleon Bonaparte is saying by this phrase कि मुझे शेरों की आवश्यकता नहीं है, मुझे ताकतवर लोगों की आवश्यकता नहीं है. 100 लोग दे दो, 100 कमजोर लोग ही दे दो. यहाँ पे रेफरेंस है डॉग्स का, कुत्तों का, कि 100 कुत्तों को ही दे दो, और एक शेर को, एक ब्रेव मैन को उनका लीडर बना दो उन 100 कुत्तों का. और फिर देखो वो जो 100 लोग हैं, 100 कमजोर लोग हैं, या फिर वो
इन रेफरेंस ऑफ दिस 100 कुत्ते जो है, अगर उसका लीडर बना दिया जाता है किसी शेर को, फिर उनको फाइट करते हुए देखो, फिर आप कंपेयर ही नहीं कर पाओगे कि कौन शेर कौन कुत्ता। वो एज अ शेर, एज अ लॉयन ही लड़ेंगे। आपको देखने में ऐसा प्रतीत होगा कि मानो कि 101 शेर ही लड़ रहे हैं। सो दिस वाज द माइंडसेट ऑफ नेपोलियन बोनापार्टे कि उसको कभी भी ब्रेव हैवी सोल्जर्स की रिक्वायरमेंट नहीं थी। वो बोले कि भले ही वीक दे दो, लेकिन लीडर जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए, वो पावरफुल होना चाहिए। और जब लीडर पावरफुल होता है तो फिर पीछे जितने भी सेनाएं हैं, जितनी भी आर्मी है, वो भी उसी के अकॉर्डिंग फाइट करती है। So build an army of 100 dogs, appoint a lion as their leader, and watch all the dogs fight as lions. The next proverb comes from Lord Krishna. Even on the path to peace, even on the path to peace, the last door is war. Even the path to peace, the last door is war. Means आप शांति प्रिय हो, आपको शांति अच्छी लगती है, इसका ये मतलब नहीं कि आप युद्ध को नकार सको। शांति के लिए भी, शांति चाहने के लिए भी आपको लड़ना पड़ेगा। शांति प्राप्त करने के लिए भी आपको आखिर में लड़ना ही पड़ेगा। अपने आप शांति नहीं मिलती। शांति से पहले भी एक वॉर होता है, और वो वॉर जब एंड होता है तब सब कुछ खुद ब खुद शांत हो जाता है। So for that, even on the path to peace, the last door is war. Whenever we say war, लास्ट में क्या होता है? जब खूब मार पीट, युद्ध, ये सारी चीजें चल रही होती हैं, इसके लास्ट में क्या होता है? जब वो मारपीट खत्म हो जाता है, जब लोग ही नहीं बचते, कुछ लोग बचते हैं, तो उनके पास अब क्या बचा है? अब उनके पास आ गई है शांति। सो अ पर्सन कांट से कि आई एम नॉट इनटू द फाइटिंग, आई एम नॉट इनटू द वॉर, I don't like war, I only like peace. So for that, and for those people, Lord Krishna says, even on the path to peace, the last door is war. कि भले ही आपको शांति पसंद हो, लेकिन शांति से पहले भी, शांति को देखने के पहले वाला जो डोर है, वहां पर एक युद्ध है, और उस युद्ध के बाद ही आपको शांति की प्राप्ति होगी। The next is from same Fyodor Dostoevsky. What he says: the more I read, the more I learn, and the more I learn, the more I realize I know nothing. The more I read, the more I learn, and the more I learn, the more I realize I know nothing. मैंने जितना पढ़ा, जितना मैं पढ़ता गया, उतनी ही चीजें मैंने सीखी, और जितनी चीजें मैंने सीखी उससे मुझे ये पता चला और मुझे ये अनुभव हुआ कि मुझे और भी सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी तक मैंने जितना सीखा वो इनसफिशिएंट है। और इस खोज में कि मुझे और भी सीखना है, और भी ज्ञान हासिल करना है, क्योंकि जो भी ज्ञान मेरे पास अभी तक है वो संपूर्ण नहीं है, इस तलाश में मैंने ये पाया मैं तो कुछ भी नहीं जानता अभी तक, मुझे तो और जानने की आवश्यकता है। भले ही मैंने पढ़ा हो, लेकिन ये पढ़ाई तो कुछ भी नहीं है अभी तक। मैंने कितनी भी पढ़ ली हो, 100 बुक पढ़े हैं, 10,000 बुक हैं, 100 ही तो पढ़े हैं, अभी और पढ़ना बाकी है, ये तो कुछ भी नहीं। तो उस बिहाफ पे फ्योडोर डोस्टोएव्स्की सेज, द मोर आई रेड, द मोर आई लर्न, एंड द मोर आई लर्न, द मोर आई रियलाइज आई नो नथिंग।
कि जितना मैं पढ़ता गया उतना मैं सीखता गया, और जितना मैं सीखता गया उतना ही मैंने अनुभव किया कि मुझे तो कुछ भी नहीं आता। The next one I have already told you in my shorts. I don't know whether you have seen that or not, but it is one of my favorite. Water has no effect on fake flowers. Water has no effect on fake flowers means पानी का कोई असर नहीं होता नकली फूलों पे जो साज सजावट के लिए रखा गया है। पानी का असर किस पे होगा? जो जीवित पौधे हैं उन पे होगा, जिनको मिट्टी से अपनी सिंचाई मिलती है, मिट्टी से जिसको अपनी न्यूट्रिशन मिलता है, तो उस पर पानी छिड़कोगे तो वो उसमें वो चीज़ें ग्रोथ नज़र आएगी, वो उसको इनटेक करेगा। बट नकली पौधे जो है, नकली फूल जो है, जो कि बस साजो सजावट के लिए घर में रखा जाता है, उस पर पानी छिड़कोगे तो क्या होगा? उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। उसको पानी में डाल दो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सो दिस वॉज अ रेफरेंस कि अ पर्सन इज making a lot of efforts, a lot of efforts, a lot of efforts, और जिसके लिए वो एफर्ट्स कर रहा है उस पर कोई इम्पेक्ट ही नहीं पड़ेगा, उस पर उसका कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। फिर ये वाला व्यक्ति सोचेगा कि इतने एफर्ट लगाने के बाद भी इस वाले व्यक्ति पे असर क्यों नहीं पड़ रहा है। आएगा ना एक टाइम पे कि सारे एफर्ट्स मैं ही लगा रहा हूँ, वो नहीं लगा रहा है या वो नहीं लगा रही है, और इतने एफर्ट्स में लगा रहा हूँ तो अप्रिशिएशन भी नहीं मिल रहा है। तो क्या है कमी? कमी क्या मुझ में है? क्या मुझे और एफर्ट लगाने चाहिए? तो उसके लिए ये लाइन है, वाटर हैज नो इफेक्ट ऑन फेक फ्लावर्स। पानी का प्रभाव नहीं पड़ता नकली फूलों पे। द नेक्स्ट वन इज बाय मार्क मैनसन। मार्क, M-A-R-K, Mark Manson. What he says, you must develop the ability to be disliked in order to free yourself from the prison of other people's opinions. You must develop the ability to be disliked in order to free yourself from the prison of other people's opinion. कि आपको अगर फ्री होना है इस चीज में कि लोग क्या सोचते हैं उसका आप पर असर ना पड़े, तो सबसे पहले आप उनको कंफर्टेबल करना छोड़ दो। आप उनके अकॉर्डिंग जो है अच्छा बनना छोड़ दो। उनको, अगर वो आपको हेट करते हैं तो उनको हेट करने दो। आप एफर्ट्स मत लगाओ कि अरे वो हेट्रेड की तरफ जा रहा है, वो डिसलाइकमेंट की तरफ जा रहा है, वो हो सकता है मुझे अब पसंद ना करे, तो वो मुझे कैसे पसंद करेगा, तो उसके लिए मुझे ये करना पड़ेगा। तो मैं ये करता हूँ, मैं ये करूँगा तो वो खुश होगा, वो खुश होगा तो फिर वो मुझे हेट नहीं करेगा, वो मुझे लाइक करेगा। तो उसके बिहाफ पे कहा गया है कि अगर आपको फ्री होना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको दूसरे लोग क्या सोचते हैं आपके बारे में उसका अगर आप पर इम्पैक्ट ना पड़े, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बहुत ही रिलैक्स रहना पड़ेगा। आपको ये नहीं सोचना है कि कौन आपको हेट कर रहा है, लाइक कर रहा है। और जब आप वो अचीव कर लेते हो कि आपको फर्क ही नहीं पड़ता कि कौन आपको हेट कर रहा है, कौन आपको लाइक कर रहा है, तब जाके आप फ्री हो पाओगे। तब जाके आप नेचुरल डिसीजंस खुद के लिए ले पाओगे। अदरवाइज आप बंधे हुए हो, सबको इम्प्रेस करने में लगे हुए हो, और उसी में आपका मोस्टली टाइम जा रहा है। So you must develop the ability to be disliked in order to free yourself from the prison of other people's opinion, said by Mark Manson. Now you can use these proverbs. Okay, you just have to learn these proverbs. I am also learning. I will not say that I have crammed these proverbs, so I am also revising with you, and we have to learn this, and we can use. We should use. We must use these phrase somewhere. Okay, so it gonna make sense. Next proverb is from Africa. If a tree does not, if a tree does not know how to dance, the wind will teach it. If a tree does not know how to dance,
द विंड विल टीच इट। अगर एक पेड़ को नहीं पता कि कैसे डांस करते हैं, कोई बात नहीं, जब हवा चलेगी वो सीख जाएगा, वो हवा जो है उसे डांस सिखा देगी। इसका ये मतलब है बेसिकली कि अगर आपको कुछ नहीं आता तो हो सकता है एक व्यक्ति आएगा आपकी लाइफ में और वो आपको वो चीज़ सिखा देगा। फॉर एग्जाम्पल, फॉर सपोज आपकी लाइफ बहुत ही न्यूट्रल चल रही है, कोई एक्साइटमेंट नहीं है, सब कुछ बहुत बैलेंस चल रही है। हो सकता है एक पर्सन आए और थोड़ा सा क्यूरियस बना दे इसको, थोड़ा एक्साइटेड बना दे इसको, थोड़ा एडवेंचरस बना दे, ठीक है। तो आपको इसमें कुछ नहीं करना है, वो सामने वाला व्यक्ति ही आएगा और वो अपने नेचर से उसको ऐसा कर देगा कि एडवेंचरस आपको फील होगा। तो उसके लिए कहा गया है कि आपको करने की आवश्यकता नहीं है, हवा सिखा देगी आपको। तो इफ अ ट्री डज नॉट नो हाउ टू डांस, द विंड विल टीच इट। दिस वन इज अफ्रीकन proverb. Okay, and the next proverb is, it is unknown. No, it is said by Osho. I once loved a flower so much that instead of picking it, I left it alone. I once loved a flower so much that instead of picking it, I left it alone. Means एक बार मुझे, ओशो इज सेइंग, एक बार मुझे एक फूल इतना अच्छा लग गया, इतना अच्छा लग गया कि उसको तोड़ने की जगह मैंने उसको लगे रहने ही छोड़ दिया। ठीक है, क्योंकि लगा रहेगा तो जीवित रहेगा, जीवित रहेगा तो इट्स अ इट्स अ थिंग, इट्स एन अप्रिशिएबल थिंग कि बहुत अच्छा लग रहा है, मैं उसको काफ़ी देर तक देख सकता हूँ और वो सूट कर रहा है वहाँ पर। अगर मैंने उसको तोड़ लिया अपने खुशी के लिए तो ज़्यादातर आज शाम तक सर्वाइव करेगा मेरे हाथों में, ठीक है, उसके बाद मुरझा जाएगा, सूख जाएगा, ठीक है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। और मैं नहीं चाहता, क्योंकि जो फूल इतना अच्छा है कि मैं नहीं चाहता कि वो मुरझाए, तो उसको नेचुरली उस पेड़ पौधे में लगे रहने देते हैं और वो अपने अकॉर्डिंग जैसा जब तक उसको सर्वाइव करना है करेगा। वरना ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, अगर कोई फूल अच्छा लगा तो तोड़ लिया, तोड़ लिया मीन्स वो थोड़ा सेल्फिश हो गया और उसको उसने खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए उसको तोड़ लिया, बट उसका आउटकम क्या है, वो शाम तक सूख जाएगा मतलब। और हमें इस चीज़ का फर्क नहीं पड़ता तो हमें कैसे पता, हम कैसे उसको जस्टिफाई करेंगे कि हमें वो फूल अच्छा लगा था, तो हमने उसे लगे रहने दिया। और नो डाउट वो ज़्यादा अभी उसको लाइफ टाइम 3-4 दिन का रहेगा उसके पास, इतना श्योर है हम, तो उसको लगे रहने दिया। एंड दिस वॉज नॉट फॉर द फ्लावर्स। We can take the example of relationship, that if a person is not happy with you, but you like that person, you love that person, and the person is not happy with you, then you will let him go or you will let her go. Go wherever you want. You are free, and go wherever you feel happy. Okay, whatever makes you feel happy, go there. ठीक है, we can't hold that person like, no, you have to be with me, you have to be with me, you have to be with me, I don't care, whatever you like, I don't care, I like you, you have to be with me. And for that perspective also is saying कि अगर कोई चीज़ अच्छी लगती है और आपने उसको अपने पास होल्ड करके रखा है, तो नहीं कह सकते कि आप उसको एक्चुअल में पसंद करते थे। इट मीन्स यू वर अटैच्ड, नॉट यू डिडंट लव दैट थिंग। So this was the line said by Osho. The next last proverb is, when a tree falls, everyone hears the sound, but when a tree grows, no one hears it. When a tree falls, everyone hears the sound, but when a tree grows, no one hears it. This one is Persian proverb. एंड व्हाट डज इट मीन डायरेक्टली, इन डायरेक्ट सेंस, कि जब भी पेड़ गिरता है तो उसकी आवाज़ तो है सभी को सुनाई देती है, लेकिन जब पेड़ उग रहा होता है, जब ग्रो कर रहा होता है, तो उसकी आवाज़ किसी को सुनाई नहीं देती। तो जब एक पेड़ धड़ाम से गिरे तो आवाज़ ऑफ कोर्स आता है, सब सुनते हैं, लेकिन जब वो ग्रो कर रहा होता है तो किसी को सुनाई नहीं देता है।
रेपुटेशन की बात करें किसी व्यक्ति की, या फिर उसकी समाज में इज्जत की बात करें, तो जब वो ग्रोथ कर रहा होता है, बहुत ही वेल डिसिप्लिन गाय, ठीक है, पढ़ रहा है, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, तो कोई भी उतना ध्यान नहीं देता। जब कोई व्यक्ति नॉर्मली अपनी लाइफस्टाइल को जी रहा है स्मूथली, कोई ध्यान नहीं देता, लेकिन जैसे ही उसके कैरेक्टर पे कुछ लगा कि उसने ये कर दिया, ये कर दिया, पूरे सोसाइटी में एक रूमर मच जाता है, एक डिस्कशन का, एक चर्चा का विषय बन जाता है। तो उसके लिए उस रेफरेंस में कहा गया है कि ट्री जब ग्रो कर रहा होता है तब किसी को सुनाई नहीं पड़ता, लेकिन जब गिरता है तब सबको सुनाई देता है। तो जब आप अच्छे से सब कुछ कर रहे हो, मैनेज कर रहे हो, तो किसी को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जैसे ही आप फंसे, कोई चीज़, किसी चीज़ का इल्ज़ाम आप पे लगा, तो वो चीज़ सबको सुनाई दे जाएगी, ग्रुप ऑफ डिस्कशन बन जाएगा वो। दिस वाज द पर्सियन प्रोवर्ब। नाउ this one is kind of lame, but funny one. Law of karma, defined in very childish way. Like, a person asks what is law of karma, okay, and you have to teach that child in a very childish way कि what is law of karma. You buy good potatoes, ठीक है, आप अच्छे आलू जो है वो खरीदते हैं, एंड रिजेक्ट बैड वंस, और बुरे बुरे आलू आप छांट देते हैं। आप अच्छे आलू खरीद लेते हैं और बुरे आलू छांट देते हैं। द बैड वंस रिटर्न इन योर लाइफ थ्रू समोसास, और जो खराब वाले आलू हैं वो आपके पास आ जाते हैं, आपने भले ही रिजेक्ट किया हो, लेकिन वो आपके पास घूम के आ जाएंगे। किस माध्यम से? आपको समोसा बहुत अच्छा लगता है, समोसे उसी समोसे में आएगा। हलवाई क्या करते हैं, सस्ते के चक्कर में वो खराब आलू खरीद लेते हैं जो कंज्यूमर्स रिजेक्ट करते हैं, और उसको समोसा में भर के, और समोसा किसको नहीं अच्छा लगता, वो समोसा लेते हैं और उस समोसे में वो आलू आ जाता है। नॉट समोसा, बट द आलू, बट विद द आलू चाट, but in the burger, but by the mode of chips, etc. So you buy good potatoes and reject bad ones. The bad ones return in your life through samosas, aloo chaat, burgers, chips, etc. So it was very like in a different way. Okay, not in a serious way, but in a different way, in a funnier way, to make someone understand how law of karma works. ठीक है, कि वो घूम फिर के चीजें जो हैं आप पे आ जाएंगी, दैट इज लॉ ऑफ कर्मा। दिस वन इज वन ऑफ माय फेवरेट, विद द फ्लावर वाला, फ्लावर द वाटर डजंट वर्क ऑन फेक फ्लावर्स, उसके बाद द वाटर हैज नो, द proverb was water has no effect on fake flowers। उसके बाद ये मेरा फेवरेट वन है, when the X came into the forest, the tree said, the handle is one of us। This one is Turkish proverb, and whenever we read the proverb now, and when it belongs from different countries, it just give us a idea like what the country think, how the people of that country think, what was the ideology of that person who were living in that country. So the proverb, when we will read uh, different countries proverb, it just give us the philosophical thought that the person was thinking. So this one is a Turkish proverb,
And what it says, when the X came into the forest, the tree said, the handler is one of us. तो जब कुल्हाड़ी जंगल में आती है, कुल्हाड़ी कौन लेके आता है? ठीक है, वो क्या बोलते हैं उसको, जो जंगल काटने आते हैं, तो वो पेड़ काटने जो आते हैं वो कुल्हाड़ी लेके आते हैं। अब कुल्हाड़ी लेके जंगल में कोई क्यों आएगा पेड़ काटने? लेकिन तो उसका रेफरेंस दिया गया है एक्स के थ्रू, एक्स, ए एक्स ई एक्स। सो इसमें कह रहे हैं कि जब कुल्हाड़ी जंगल में आई तो पेड़ों ने कहा कि चिंता मत करो, हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वो जो कुल्हाड़ी की हत्ती है वो तो हमारी रिलेटिव है, वो लकड़ी है, हम भी लकड़ी वो भी लकड़ी, मतलब हमें उससे नुकसान नहीं है। मतलब वो ऐसे ही आया है, देखने आया होगा, हमसे मिलने आया होगा। ठीक है। तो व्हेन द एक्स केम इनटू द फॉरेस्ट, जब कुल्हाड़ी जंगल में आई, द ट्री सेड, पेड़ों ने कहा, द हैंडल इज वन ऑफ अस, जो हैंडल है उसकी, जो हत्ती है उसकी, वो हम ही में से तो एक है, तो हमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन इसका रेफरेंस था कि आप जिस पर भरोसा करते हो वही आप पर हमला करता है। तो जिस पर आपको शक नहीं होगा वही आप पर हमला करेगा। When the axe came into the forest, the tree said, the handle is one of us. तो यहाँ पर पेड़ों ने उस कुल्हाड़ी पे भरोसा किया क्योंकि उसमें लकड़ी की हत्ती लगी हुई थी। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि ये जो कुल्हाड़ी है उन्हीं को काटने आई है। So this was the Turkish proverb. I am going to repeat it once again. And the last time when the X came into the forest, the tree said, the handle is one of us. The next one is a very popular author, poet, whatever you say. And on IG, you will see the name of this person, Franz Kafka, the genius person he was. And I hope you have heard the story of Kafka, who just helped a small child, a small girl who lost her doll. So the doll child, the doll girl, and Franz Kafka. I hope you have read that story. That is very interesting. So what Franz Kafka says, I am a cage in search of a bird. कि मैं पिंजरा हूँ और मैं तलाश कर रहा हूँ एक पंछी को। ठीक है, मैं एक खाली पिंजरा हूँ और मैं एक पंछी की तलाश कर रहा हूँ। नाउ आई एम वेरी कंफ्यूज, नॉट वेरी बट लिटिल बिट कंफ्यूज, कि इसमें फ्रेंड्स काफका क्या कहना चाहते हैं कि क्या वो पंछी अगर आता है तो क्या वो कैद हो जाएगा, और क्या वो पिंजरा यही चाहता है उस पंछी को कैद करना? तो या फिर इसका कुछ और मीनिंग हो सकता है कि मैं, क्योंकि केज मेरा नेचर केज जैसा है और मेरे टूवर्ड्स कोई पंछी अट्रैक्ट नहीं होगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कोई पंछी आए, लेकिन पंछी मेरे पास क्यों आएगा, क्योंकि मैं तो केज हूँ। तो and we know the meaning reference of cage and bird, we all know the meaning of reference, the reference of these words. So वो समझाने की जरूरत नहीं है, बट आई एम काइंड ऑफ कंफ्यूज कि इसमें रेफरेंस केज को लेके फ्रेंड्स का क्या रहा होगा, कि क्या वो खुद को ब्लेम कर रहे हैं या क्या वो अपने नेचर को ब्लेम कर रहे हैं, या समथिंग लाइक दैट। सो but it is something deep. I am a cage in search of a bird. So this was the last proverb, and we will continue with the idioms in next video. Till then, thank you. Keep revising. Have a good time.